ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 3rd ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਾय प्ले वे मेथड, यानी कि खेड के ਆਪਾਂ प्लेस वैल्यू जाननी सीखनी है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की है In a number, the place value of digits change by changing their place. यानी कि किसी भी संख्या दे विच जे अंक बदलते जान उन्हां दा जिहड़ी थां है वो बदल दी जाए तो उन्हां दी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जिवें कि कहण दा मतलब मैं लिखिया है इत्थे 3 4 7, इत्थे 7 दी जिहड़ी प्लेस वैल्यू 1 हैगी है। जे इत्थे इनू मैं करदा 3 7 4 ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦੇ ਹੋ। ਐਨੀ 6 ਡਿਜਿਟਸ ਫਰੋਮ 0 to 9, ਕੋਈ ਵੀ 6 ਡਿਜਿਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ। ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1s 10s 100s ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। प्रोसीजर तरीका गतिविधि की है। नंबर 1, द टीचर विल चूज 3 चिल्ड्रन। अध्यापक 3 बच्चों की चोण करेंगे। ऑल द 3 चिल्ड्रन विल मेक प्लेस वैल्यू चार्ट ऑन देयर नोटबुक्स। ते तिन्ना दे तीनों बच्चे अपनी कॉपी दे विच प्लेस वैल्यू दा चार्ट बनाएंगे, जिवें 1s 10s ते 100s। आगे चलते हैं। मान लो आप 3 बच्चे ए लए ने, एक है तरलीन जिन्होंने चार्ट बना लिया 1s 10s 100s का। दूजी है ने परनीत जिन्होंने चार्ट बना लिया 1s 10s 100s का। ते तीजे है ने रसलीन जिन्होंने चार्ट बना लिया फिर 1s 10s 100s का अपनी कॉपी दे विच। ठीक है, ये आ गई साडे कोल डाइस। दूजा काम, फर्स्ट ऑफ ऑल तरलीन will roll the dice. Whichever digit will appear on the dice, 3 children will write the digit on their own place value chart by their choice. कहने दा भाव ये है भी सब तो पहला तरलीन जिहड़ी डाइस हैगी ओनू गोल गोल घुमा के सिटेगी ते जो भी नंबर आएगा, मान लो इत्थे 6 आया, ठीक है, सारे बच्चे 6 अपने मन मुताबिक किते भी लिख देंगे अपनी कॉपी दे विच चार्ट दे विच। जिवें कि तरलीन ने लिखता 10s ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੂੰ, परनीत ने 100s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ 6 ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਲੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 1s ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 6 ਨੂੰ। Suppose 6 digit has appeared on the rolling dice ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਈਸ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਇਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। Second time, Parneet will roll the dice. Whichever digit will appear on the dice, 3 children will write that digit on their place value chart at the remaining 2 places by their choice. Suppose digit 4 has appeared on rolling the dice. Now, hun dooja bacha Parneet की करेगा, dice ਨੂੰ गोल-गोल सिटेगा ਜਿਹਦੇ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक digits ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ दूजा बच्चा परनीत जिहड़ी हैगी है वो डाइस रोल करेगी, सिटेगी जिहदे विच 0 तो लैके 9 तक कोई 6 डिजिट लिखे हुए सी। ते मान लो जद उन्हें सिटिया तो 4 नंबर आ गया। हुण फिर जिहड़ी भी थां बची हुई सी, आ देखो जिवें इत्थे ते इत्थे थां बची सी, तरलीन दे परनीत दे 10s ते 1s थां बची सी, रसलीन दे 100s ते 10s थां बची सी। उत्थे वो 4 नंबर अपने मन मुताबक लिख लैणगे। जिवें तरलीन ने लिख लिया 4 1s दे हेठां, परनीत ने लिख लिया 10s दे हेठां ते रसलीन ने लिख लिया 100s दे हेठां। थर्ड टाइम, रसलीन will roll the dice. Whichever digit will appear on the dice, 3 children will write that digit on their own place value chart at the remaining place by their choice. Suppose digit 8 has appeared on rolling the dice now. कहने का मतलब हुण तीसरी बार तीसरा बच्चा रसलीन डाइस नू रोल करेगी, सिटेगी
ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ 8 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 8 ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ 100s ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8। ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਨੀਤ ਦੇ 1s ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਥੇ 8 ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ 10s ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ teacher will ask the 3 children to write the number formed at the place value chart on the blackboard. He will ask the children for the place value of 8. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ 8 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਰਲੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 800। ਪਰਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1s 8 ਕੱਲਾ, ਰਸਲੀਨ ਦੇ ਲਈ 8 10s ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 80। ਆ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੀ। Teacher will ask all the children to form more numbers by using digits 8, 6 and 4 and then will ask the place value of 8, 6 and 4 from those numbers. ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8, 6 ਤੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 6, 4, 8 ਹੋ ਗਿਆ, 4, 6, 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ 6 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 100 ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਦੀ ਕੀ ਹੈ 10s ਹੈਗੀ ਹੈ, 8 ਦੀ ਕੀ ਹੈ 1s ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਲਰਨ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ यानी कि ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। To write any number in expanded form, the place value of every digit is determined. यानी कि किसी भी संख्या ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ expanded form ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅੰਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then the number is expressed in the form of place values. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਆਫ 675 is as given below. ਜਿਵੇਂ ਕਿ 675 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 1s 7 10s 600s। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 1s यानी कि 5 multiplied by 1 5 आ गया, 7 10s 7 multiplied by 10 ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 70। 600s यानी कि 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ 675 ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਹੋਈ 600s plus 7 10s plus 5 1s। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 600s ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 600 ਆ ਗਿਆ, 7 10s ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 5 1s ਇਦਾਂ 5 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੇਕ ਦ ਮੈਨ ਕਾਰਡਸ ਫॉर 751। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ 751 ਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ask one child to pick man card for 751। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 751 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਚੱਕੋ। if the number is correct then show the man card to all the children। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 700s ਆ ਗਿਆ, 5 10s 50 बन गया, 1 1s plus 1 करता था 3 मैन कार्ड आए, एक हो गया 700 का क्योंकि 700s की थां ते है, 5 10s का 50 आ गया, 1 1s का 1 आ गया। हुण आपां अगे चलते हैं। लेट्स डू, आओ करिए क्वेश्चन सॉल्व।
राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। हुण आपां एक्सपैंडेड फॉर्म दसनी है। हुण तुहानूं पता है वनस कित्थे हुंदा है, टेंस कित्थे हुंदा है ते हंड्रेड्स कित्थे हुंदा है। चलो शुरू करदे हां। ਇਹ ਹੈਗਾ 149 वनस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਟੈਂਸ ਤੇ ਹੰਡਰਡਸ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। 100 ਹਾਂਜੀ, 4 ਟੈਂਸ ਹਾਂਜੀ, 9 वनस ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਟੋ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। 270 0 वनस ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 7 टेंस की थां ते 2 हंड्रेड्स की थां ते, यानी कि 2 हंड्रेड्स आएगा, 7 टेंस आएगा, 0 वनस की थां ते। ते बच्चों ये ध्यान रखियो इत्थे हंड्रेड्स आंदा है जब तुसी प्लेस वैल्यू लिख रहे होंदे हो, पिछे एस लगदा है सारियां दे, ठीक है, ध्यान रखियो। हुण आपां इहनूं मिटो दांगे, अगे चलदे हां। आगे है 369, 9 है वनस की थां ते, 6 है टेंस की थां ते, 3 है हंड्रेड्स की थां ते। इत्थे लिख दांगे 3 हंड्रेड्स, 6 टेंस, 9 वनस। अगला चलदे हां, इहनूं मिटो दांगे। 402 वनस, टेंस, हंड्रेड्स, 4 हंड्रेड्स की थां ते, 0 टेंस की थां ते, 2 वनस की थां ते। इनू फिर मिटो दांगे। अगे हैगा 788 वनस, टेंस, हंड्रेड्स, 7 हंड्रेड्स की थां ते, 8 टेंस की थां ते, 8 ही वनस की थां ते भी आ जाऊगा। अगला है 880 वनस, टेंस, हंड्रेड्स, 8 हंड्रेड्स की थां ते, 1 टेंस की थां ते, 8 वनस की थां ते। है कि नहीं सौखा? चलो इनू मिटो के अगे चलते हैं। इत्थे लिखिया है राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनू आपां खोल के लिखना है। तुहानू पता है किवें लिखी दा, ए वनस हो गया, ए टेंस हो गया, ए हंड्रेड्स। वनस यानी कि कोई जीरो नहीं, टेंस यानी कि पीछे एक जीरो लग जाएगा, हंड्रेड्स यानी कि पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। ए हैगा 413, तेनू आपां लिख सकते हैं 400 प्लस 10, क्योंकि 1 टेंस की थां ते पीछे एक जीरो लग जाएगा, प्लस 3। उवें ही ए वाला भी आपां कोशिश करांगे सॉल्व करन दी। 507 ए हो गया वनस, टेंस, हंड्रेड। सानू पता है वनस दे विच कोई जीरो नहीं आंदा, टेंस दे विच एक जीरो आंदा है, ते हंड्रेड्स दे विच 2 जीरो। ते इत्थे आ गया 500 प्लस 0 प्लस 7, क्योंकि 0 किसी भी प्लेस वैल्यू ते होए ओदी प्लेस वैल्यू 0 ही हुंदी है। अगे है 700। हुण आपां फिर तो लिखांगे, ए हो गया वनस, टेंस ते हंड्रेड्स। 7 हंड्रेड्स की थां ते है, 700 आ गया। 0 किसी भी थां ते होए ओदी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहिंदी है, इत्थे भी 0, इत्थे भी 0। अगला हैगा जी 210 वनस, टेंस, हंड्रेड्स। 2 हंड्रेड्स प्लस 1 0 10, क्योंकि 1 टेंस की थां ते है, ते 0 दी प्लेस वैल्यू 0, 0 0 दी थां ते ही आएगा, ओदी कोई प्लेस वैल्यू नहीं हुंदी। उवें ही 118 वनस, टेंस, हंड्रेड्स। 1 हंड्रेड्स की थां ते यानी कि पिछे 2 जीरो, प्लस 1 टेंस की थां ते पिछे एक जीरो, 8 वनस की थां ते कल्ला 8। अगला है 662 वनस, टेंस ते ए हो गए हंड्रेड्स। हुण 6 हंड्रेड्स आ गया, क्योंकि 6 हंड्रेड्स की थां ते है,
6 फिर टेंस की थां ते है 60 आ गया ते 2 वंस की थां ते इत्थे कल्ला 2 आ जाएगा। हुण इत्थे लिखिया है राइट द नंबर फ्रॉम द एक्सपैंडेड फॉर्म। हुण एक्सपैंडेड फॉर्म तो आपां नंबर लिखना है। हुण तुसीं ध्यान दिओ, हंड्रेड्स की थां ते की हैगा 1 1 आ गया। टेंस की थां ते की हैगा 6 क्योंकि उहदे नाल एक 0 है, इत्थे आ गया टेंस की थां ते 6। वंस की थां ते हैगा 2 क्योंकि उहदे नाल कोई भी 0 नहीं है, ये नंबर बन गया 162। हुण तुसीं ध्यान नाल देखियो, हंड्रेड्स की थां ते यानी कि पिछे 2 0 हैगे ने 3 आ गया। टेंस की थां ते कुछ भी नहीं है यानी कि 0 आ गया। वंस की थां ते हैगा जी 7, पीछे कोई 0 नहीं है, ये आ गया 307। है कि नहीं सौखा? बस तुसी लभना है हंड्रेड्स की थां ते केड़ा है, टेंस की थां ते केड़ा है ते वंस की थां ते। उवें ही देखो हंड्रेड्स की थां ते हैगा जी साडे कोल 4, इत्थे आ गया क्योंकि पीछे 2 0 ने। टेंस की थां ते हैगा 1, पीछे एक 0 है ते वंस की थां ते कुछ भी नहीं है, कल्ला 0 आ गया। हंड्रेड्स की थां ते की है 1, चलो लिखता जी पीछे 2 0 से। टेंस की थां ते 40, टेंस की थां ते 4 ते वंस की थां ते कुछ भी नहीं है, 0 आ गया। इत्थे हंड्रेड्स की थां ते हैगा जी 8 क्योंकि 800 है। टेंस की थां ते है 6, इत्थे आ गया 6। वंस की थां ते कुछ भी नहीं है, इत्थे आ गया जी 0। उवें ही हंड्रेड्स की थां ते है 6, टेंस की थां ते 5 ते वंस की थां ते 8, ये बन गया 658। उत्ते वाला है 860, उस तो उत्ते वाला 140। ठीक है बच्चों, जिन्नी आपां प्रैक्टिस करांगे उन्ने वधिया तरीके नाल सानू चीज़ां समझ आणगियां। हुण तुसीं मिटो के अपने आप करन दी कोशिश जरूर करियो अपनी कॉपी दे विच। ते हुण आपां अगली क्लास दे विच मिलांगे, तद तक टेक केयर, बाय बाय।